Chapter 3, Arithmetic Progression, Practice Set 3.3, Question number 4. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. So what is given? 19. So T19 term is equal to 52 and 38th term is 128, means T38 is equal to 128 and find the first 56 term. Find the sum of first 56 term, means S56 is equal to question mark. हम लोग को S56 फाइंड करना है. So what is given? T19. So we have to apply formula Tn. So Tn is equal to A plus n minus 1 into D. फॉर्मूला अभी क्या दिया है? T19. सो T19 मीन्स n इज इक्वल टू 19. सो A प्लस n is 19 minus 1 into D, but T19 is 52 is equal to A plus 19 minus 1 is 18 D. Therefore A plus 18D is equal to 52. Suppose this is equation 1 and what is given? T38. Again use formula Tn. So Tn is equal to A plus n minus 1 into D. T38 is given, so T38 is equal to n is equal to 38 A plus 38 minus 1 into D, but T38 is 128 is equal to A plus 38 minus 1 is 37D, and therefore A plus 37D is equal to 128. Suppose this is equation 2. We got two equations. A plus 18D is equal to 52. A plus 37D is equal to 128. एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है? S56. अभी यहाँ पे देखो ए सम हम लोग ए मेथड से कर सकते हैं. सो subtracting equation 1 from 2. सो A plus 37D हम लोग को क्या मिल जाएगा? D is equal to D. Substituting D is equal to 4 in equation 1. So A is equal to minus 20. Again हम लोग को S56 फाइंड करना है. तो फॉर्मूला कौन सा है? Sn is equal to n upon 2 2A plus in bracket n minus 1 into D. N is equal to 56 upon 2 A is equal to minus 20 n 56 minus 1 D is 4 56 upon 2 is 28 minus 40 2 into minus 20 minus 40 56 minus 1 is 55 and 55 into 4 is 220. Again 28
220 minus 40 is 180. So 28 into 180 is 5040, जो 5040. हम लोग क्या मिल गया? The sum of first 56 term is 5040. अभी यहाँ पे क्या किया था मैंने? सब्सट्रैक्टिंग. अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. Equation 1 is a plus 18d is equal to 52, and equation 2 is a plus 37d is equal to 128. ऐड कर दो a plus a 2a. 18 plus 37 is 55, 55d, and 52 plus 128 is 180, is 180. Suppose that is 2a plus 55d is equal to 180. Suppose this is equation 3. अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है? S फाइंड करना है. S56 फाइंड करना है. मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म हम लोग को फाइंड करना है. तो सम फाइंड करना है मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हम लोग को? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n is equal to 56. n is equal to 56 upon 2. 2a, n minus n is 56 minus 1 into d. 56 upon 2 is 28. 2a, 56 minus 1 is 55. Therefore 28 into, but 2a plus 55, 2a plus 55d is equal to 180. See here, 2a plus 55, 2a plus 55d is equal to 180. So ये 180 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. Got it? From इक्वेशन 3, 2a प्लस 55d का वैल्यू कितना है? 180 यहाँ पे. अभी 28 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आएगा 5040. सो S56 is equal to 5040 means 5040. So therefore the sum of the first 56 terms is 5040. Got it? आप लोग यहाँ पे एडिंग करके भी आ सकता है. इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर दो तो ए मिल जाएगा. आप लोग को सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या मिल जाएगा? ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और डी का वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर 5040. को एडिंग कर दो तो भी आंसर सेम आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा. Got it? So next question, 5th. Question 5th. Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 5.
This is activity type questions. So the number between 1 and 42, 1 and 140 divisible by 4, divisible by 4. So numbers are 4, 8 between 140. 140 is also divisible by 4, 4, बट हम लोग को क्या लेना है 1 एंड 140 के बीच वाले नंबर, तो 140 नहीं आ सकते। थोड़ी ये एक्टिविटी है, वहाँ पे आंसर दिया है 4, 8 डॉट 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 लास्ट नंबर इज 136। सो हाउ मेनी आर these numbers, how many are these numbers means n is equal to question mark, n का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। सो a is equal to, a means first term, so a is equal to 4. D means difference, so t2 minus t1, 8 minus 4 is 4. And tn means last term is 136. Next formula, tn is equal to a plus n minus 1 into d, 36. a is equal to 4, n minus 1, d is equal to 4. अभी हम लोग को n इज इक्वल टू बॉक्स दिया है, मतलब n का वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो क्या करना है, और हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट, तो हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रब सॉल्व करता हूँ, 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, सी 136 is equal to 4 plus n minus 1 into 4. It is 4 plus 4 into n, 4n. 4 minus 1, 4. Minus 4 plus 4 get cancelled. So 136 is equal to 4n. That is 136 divided by 4 is equal to n. And answer is 34. 34 इज इक्वल टू n। क्या मिल गया हम लोग को, n का वैल्यू 34। अभी a वैल्यू a बॉक्स में पुट कर दो, n का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140। तो सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कौन सा है, Sn। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी n का वैल्यू कितना है 34, मतलब s 34 फाइंड करना है, n का वैल्यू 34। अब यहाँ पे 2, a इज 4 प्लस n इज 34 माइनस 1 इंटू डी इज 4। अभी a भी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 into 4 plus 34 minus 1 into 4. See, 2 into 4 plus 34 minus 1 into 4. So 2 into 4, 8. 34 minus 1 is 33 into 4. 8. 33 into 4 is 132. So 130 plus 132, so 4 plus 132 is 140. ये क्या मिल गया, ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना मिल गया 140। ब्रैकेट का बाहर क्या है 34/2, 34/2 मीन्स 17। तो यहाँ पे क्या आएगा 17 इंटू 140। तो 17 इंटू 140 इज, मल्टीप्लाई करके देखो
2380 2380 हम लोग को क्या मिल गया आंसर। सो आंसर क्या मिल गया 2000, आंसर इज 2380, ये हम लोग को आंसर मिल गया। सो देयरफॉर द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4 is 2380। गॉट इट। यहाँ पे देखो जो बॉक्स है वो बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। एग्जाम में आप लोग ये बीच का जो स्टेप्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बॉक्स है वो बॉक्स को करना ही पड़ेगा। अभी इसके स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्टेप ऐड कर दो, नहीं तो ये स्टेप्स आप रफ कैलकुलेशन में कर सकते और डायरेक्ट एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। नेक्स्ट यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ने रफ कैलकुलेशन किया है। आप भी यहाँ पे स्टेप ऐड कर दो, नहीं तो ये स्टेप रफ कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर ए बॉक्स में लिख दो। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 6। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of the first 55 terms of an AP is 3300, find its 28 term। हम लोग को क्या दिया है, the sum of the first 55 term मतलब S55 is 3300। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, 28 टर्म मतलब T28 हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम लोग को दिया है S55। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, SN। सो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना है, S55 मतलब N इज 55। सो N इज इक्वल टू 55/2। 2A यहाँ पे A का वैल्यू नहीं दिया है, 2A N इज 55-1 इंटू D। S55 is 3300। (55/2) 2A plus 55-1 is 54 D। 54 D। तो क्या मिल गया यहाँ पे और क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे देखो 3300 मतलब 3300 ए नंबर डिवाइड है, यहाँ पे क्या जाएगा इनटू ऊपर है तो क्या जाएगा वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 54 D। और भी कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के 2 क्या हो सकता है यहाँ पे कैंसिल हो सकता था। अभी यहाँ पे देखो 55 1 डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जार 5 1 जार। सो सिंपल 11 से हो सकता है, 11 5 जार 11 3 जार 5 1 जार 5 6 जार 0। क्या मिलेगा यहाँ पे 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 2A प्लस 54 D। 60 इंटू 2 कॉमन निकाल सकते तो 2 कॉमन निकालते 2 इन ब्रैकेट A। सो 54 डिवाइड बाई 2 इज 27। 2 इंटू A 2A 2 इंटू 27 54। सो राइट, अब ये 2 गेट कैंसर, तो क्या मिल गया यहाँ पे 60 इज इक्वल टू
a plus 27d. Therefore, a plus 27d is equal to 60. Suppose this is equation 1. हम लोग को a मिल गया, a plus 27d is equal to 60. हम लोग को फाइंड क्या करना है, t28. अभी ये फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं आंसर क्या मिलता है. t28 फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, tn. सो TA इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये क्या है, फॉर्मूला है. सो tn t28 फाइंड करना. सो मतलब n इज इक्वल टू 28. a n का वैल्यू कितना है, 28 माइनस 1 इंटू डी. बट सो t28 a 28 minus 1 is 27, but a plus 27d is equal to 60. मतलब a plus 27d का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 60 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो t28 is equal to 60, and therefore the 28th term is 60. ये हम लोग का आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8 and 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Thank you.